Jain sir. Yes, let the other join. Join the class idea. Then, sir. Jain Jain sir. sir. Yes, Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind. Jain sir. Yes, Jai Hind. Jain sir. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, everyone. Let the others join. Sir, looking amazing. Looking amazing. Thank you. Looking, the background is looking amazing, I think. Yes sir. Not Sir, no. आपको इसे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है. अच्छा अच्छा, ज्यादा तारीफ हो गई. Okay. So, what we have done in the last class, in Sir, you have topics. done till resistance, and sir, you have taught us Ohm's law, and you have given 2 questions. Okay, fine. Before I move further, we will talk about the parameter on which resistance depend in more detail. Students are still joining. One thing I would like to tell you that your EduNext software record your attendance by itself, and it record at 2 times. When you are in the class, 10 minutes after the class, and it record in the last of the class. So it measures that how much you are attending the classes. So don't skip the class in between. Otherwise, what happen? Your attendance is not recorded. So you are absent by default. So remember that thing. Okay, sir. Because I see that most of students take the class, but their attendance is not recorded. So it means that you are not taking the complete class. Don't leave in the middle or in between the classes. Now, as we are going to discuss on the resistance, we'll discuss. Jai Hind. Okay, so now we are going to begin, right? So we have to understand that resistance of a conductor depend on what parameter or what factors affect the resistance. So let us see that what are the factors which affect the resistance. And for that, Sir, temperature, nature of material, and cross section and length. okay. So I think nature of the matter. Okay, you're saying I have told you the definition of resistance. I think just make me Yes, sir, aware. you have told. Sir, you have I've told told. you. I've told the resistance definition. Okay, fine. Any one of you want to ask anything regarding the previous discussion? Should I start with our topic? We start with the new topic. Okay. So we have done the resistance की definition तो करवा चुका था ना मैं, just I'm asking. Yes sir, resistance की Yes, definition हो sir, गया. done. Sir, Yes sir. Okay, so then heading is dependence of resistance. sir, one confusion is there, sir. Yes. Sir, how the cross section, sir, factors the resistance? Well, that's what I'm going to ask. Factors affecting the resistance. Affecting the resistance. So that is the heading. So what are the factors which affect the resistance? Okay, so first of all, suppose this is a wire. Let me make a wire. Suppose this is a wire in which current is flowing, and there are so many electrons would be there in the wire, and due to that electrons, suppose these are the electrons in the wire,
ऑनलाइन क्लास यही चल रहा है। ऑनलाइन क्लास यही चल रहा है। मोबाइल यहाँ पर तुम कहाँ? तुम पहले नहीं Will not say. सर चल रहा है। सर चल रहा है। चल तो रहा ही है, यही सब तुम लोग कर रहे हो, बताओ किसके किसके यहाँ से मैसेज आया था, व्हाट्सएप था वो, उसमें ब्लिंक हुआ था, एनीवन सा? सर विवेक। विवेक जी क्लास नहीं कर रहे हैं क्या? वो सर गेम खेल रहा है। हाँ सर। सर बहुत चिल्ली लड़का है। Let me make what I'm trying to make is little difficult thing to do. So see, these are the electrons in the wire. Now what happened when the current is flowing through the wire, when there is a current flowing through the wire, so there is a current in the wire. So when this current flow, the electrons which are there constantly collide with the atoms which are inside the wire, and due to that there is a resistance. The position offered or the property of the material due to which it opposes the flow of current, that is called resistance. सर Please, सर हिंदी में yes. बोलिए सर। ओके सो जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, मतलब जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना, उसे हम बोलते हैं, जैसे अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड, वो टकराते रहते हैं एटम्स के साथ, सो उसकी वजह से उसमें रेजिस्टेंस होता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज हैपनिंग, सो लेट अस सी। सो फर्स्ट पैरामीटर इज Sir, we have to write सर ये this one, रजिस्टर का डायग्राम है क्या? नो, दिस इज अ नॉर्मल रजिस्टर, दिस इज नॉट अ रजिस्टर। एक वायर है, मैंने उसको इसको जूम करके बनाया है ताकि आप देख सके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। सर कॉपी में लिखना है। सर लिखना है सर कॉपी में। Yes, if you will write, you will be better. Sir, this figure also we have to draw. That's not necessary. Resistance of conductor depends on following. Okay, Tarun, don't intonate. I have to disable it. सर पकड़ा गया। Resistance of conductor depend on following parameter. So first is that length. Suppose this wire has a certain length. This wire has a length. So the length of conductor, if the length of conductor is more, then resistance will also be more. So it depends upon the length of the conductor. And so, and it is directly proportional to the length of conductor. Because let me tell you one thing, that means resistance is proportional to the resistance of conductor is directly proportional to the length. Means that if you have wire of more length, there will be more resistance. So Sir, please we wait, write- sir. Do up, sir. I'm writing, sir. So मैं इसको ग्रुप में भेज देता हूँ ना आपके, आप तो वहाँ देखते हैं। Sir, भेज देंगे? हाँ, so you'll get this. Now listen, I am going to talk about, I'm going to explain all this in more details.
See, resistance of conductor is directly proportional to the length of conductor, means length ज्यादा होगा तो resistance भी ज्यादा होगा। आप कहेंगे कैसे सर? So see, अगर कोई वायर है, सपोज आई हैव वायर एंड और उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज लेट मी इसको थोड़ा सा मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। नाउ सपोज दिस इज द कंडक्टर व्हिच आई एम शोइंग इट राइट नाउ। सो इसमें जब करंट फ्लो होता है तो मॉलिक्यूल्स इसमें जाते हैं तो टकराते रहते हैं इनके एटम्स के से। सो अगर इस वायर का लेंथ ज्यादा होगा ना तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज आप सपोज करो कि मैं आपको एक सिचुएशन समझा रहा हूँ। सपोज करो कि आप एक क्लास में हैं या आप किसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब आपको उस ट्रैफिक से होके जाना है, तो जो लेंथ होगा ट्रैफिक का जितना ही ज्यादा लंबा होगा, जाहिर सी बात है कि आपको ट्रेवल करने में उतनी ही तकलीफ होगी, क्योंकि जगह जगह व्हीकल्स होंगे। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहते हैं, बट जो एटम्स होते हैं वो जितनी ज्यादा रहेंगे रास्ते में, जितनी ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ही रेजिस्टेंस उसका होगा। सो दैट इज वन थिंग व्हिच इज गोइंग टू अफेक्ट इट। सो लेंथ ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। Sir, please. So one thing always, okay, again I'm speaking. Length ज्यादा होता है ना तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, because if the length is more, then more resistance will be offered. अब देखो, आप ऐसे सपोज करो, just take a situation that you are trying to go through some passes. मान लो आप कहीं passes से जाना चाहते हो, किसी ट्रैफिक से जाना चाहते हो। So what happens when you are trying to pass ना, तो ट्रैफिक जितना ज्यादा होगा आपको दिक्कतें उतनी होंगी ना, क्योंकि जितने ज्यादा व्हीकल्स रास्ते में रहेंगे उतना ज्यादा आपको स्किप करना पड़ेगा, उनके थ्रू होके जाना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो लेंथ ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बार बार कोलिजन्स होंगे बिटवीन द एटम्स एंड दोस थिंग्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लंबाई ज्यादा होने से ना मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने में हिंड्रेंस ज्यादा होता है, दैट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस। Okay, now back to screen. Resistance of conductor directly proportional to the length of the conductor. Length Sir, ज्यादा means होगा, traffic is atom here. what are you saying? Sir, means in this situation, traffic is atom. Yeah, you can consider the cars in the traffic, the vehicles which are in the traffic. ज्यादा लंबा होगा ना कंडक्टर का तो ज्यादा कोलिजन के चांसेस बनेंगे, तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। That's what I want to say. Second is that area of cross section. Resistance of conductor is inversely proportional. सर अभी लिख नहीं रहे हैं सर, आप भेज दीजिएगा ग्रुप में पिछली बार की तरह। ठीक ठीक, हम डेली भेजते हैं। You Thank get you, all sir. this, don't worry. Sir, we can write it also, no? आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अगर विदिन जल्दी जल्दी। अभी समझो ना यार, क्या करोगे लिख के? अभी सर समझा रहे हैं, हाँ समझो। सर, एक Same time. नहीं, उनकी अपनी मर्जी है, डोंट से लाइक दैट। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, क्योंकि होता क्या है मैं बता देता हूँ। वन थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू हैव दैट व्हेन यू आर नॉट राइटिंग ना, तो आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, क्योंकि आप मोबाइल में मैसेज पढ़ने लगेंगे इधर उधर। आई जस्ट वांट टू बी कंसंट्रेटेड, इवॉल्व होना चाहिए क्लास के अंदर। अगर आप इन्वॉल्व हैं इट्स ओके, यू डोंट नीड राइट, बट इफ यू आर ट्राइंग, पढ़ रहे हैं तो आप शुड राइट, तो उससे आपको लगता है कि यू आर डूइंग समथिंग गुड। सर आप अब कहीं वो- नहीं जा रहे सर, बात आपको सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। Resistance of conductor is inversely proportional to, inversely proportional, not directly, यहाँ तो directly था, inversely proportional to area of cross section of wire or conductor. This means that R is inversely proportional to area. Area ज्यादा होता है तो resistance कम होता है। Now how कैसे होता है ये समझते हैं। देखो, अब वही चीज है, मान लो सपोज करो आप टनल से जा रहे हो, किसी टनल में। अब टनल में आप कार ड्राइव करके जा रहे हो टनल, तो टनल का अगर एरिया बहुत चौड़ा है, बहुत बड़ा है, तो आप आसानी से उस टनल से जा सकते हो। लेकिन टनल बहुत ही पतला है अगर, तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ट्रैफिक में उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो
तो वो दिक्कत होती है। बट अगर काफी सारा एरिया मिल जाए चलने के लिए इलेक्ट्रॉन को, बड़ा पाथ मिल जाए, तो कोलिजन के चांसेस कम होते हैं। एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है तो स्मूथ फ्लो होता है करंट का, आप कह सकते हो। So there is less chances of collisions. So resistance is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. So area बढ़ता है तो resistance घट जाता है। तो area ज्यादा होगा तो resistance कम होगा। So this situation also matters in potential. The potential has nothing to do with resistance. That is different thing. Okay, it has nothing to do with. Okay, sir. Okay, now resistance depend upon, I told you, third is nature of the material. Of the conductor. Resistance also depend upon the nature of material. अब कुछ मैटर होते हैं जो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, कुछ कम करते हैं। ये तो बेसिकली देयर उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है दिस कांसेप्ट। सब सबको मिक्स कर लेना। Thus, by combining all, we can write R is proportional to L and inversely proportional to A. तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ला के आते हैं रो। This row here, row is called resistivity of the material. इसे हम लोग सिंबल को रो कहते हैं। ये ऐसे बनता है। So, सर R किसका रेजिस्टिविटी, सर R किस चीज का रेजिस्टेंस बता रहा है? दो अलग अलग, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो अलग अलग चीज है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, नेचर को बताता है, उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करता है। तार लंबा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तार छोटा होगा तो रेजिस्टेंस। सर प्लीज एक बार वापस से रिपीट करिए ये वाला R is रेजिस्टेंस इज, हाँ दोनों, अगर हम दोनों को मिला लें, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L है, या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, तो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई आ गया। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाया जाता है तो यहाँ एक कांस्टेंट लाते हैं रो। सो R इक्वल टू रो L बाई A। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इट्स कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप कंफ्यूज मत होइए, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ये स्पेशल होता है, भी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऊपर का ये नहीं लिखे थे, क्या चीज? थोड़ा सा ऊपर कर दिए, मतलब कि और नीचे कर दिए थोड़ा सा। सर L का मतलब? L is the length of conductor. And sir A? Area A of area of the cross section. Okay sir. ऐसा होता है जैसे पाइप पे पानी फ्लो होता है, तो पानी का एरिया, अगर पाइप का एरिया ज्यादा है, बड़ा पाइप है, तो मोर वाटर जल्दी जल्दी जाएगा, रेजिस्टेंस sir. कम होगा। वही होता है, तो एरिया ज्यादा मिलता है तो करंट आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो वही है। सर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वायर मेल्ट हो सकता है ना? अगर ज्यादा होगा तो नहीं, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वायर नहीं मेल्ट होगा, करंट ज्यादा होगा तो चांसेस है। ठीक है, नेटवर्क किसी किसी को नहीं ना आ रहा है? नहीं सर। Okay. So resistance also depend in the on the nature of the material. R equal to rho L by A. Rho is the resistivity. अब specific resistivity होती है। अब ये resistivity क्या चीज है, इसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा important है। Specific resistance भी कहते हैं। So R equal to rho L by A. Now we need to define here specific resistance or resistivity.
देखो नॉर्मली जो होता है रेस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी of a substance, or you can say that it is a substance which oppose the flow of current through wire it does not depend, this ये लाइन मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, it is independent of shape and size, or you can say the length and area, what length and area of the conductor or the whatever material substance. So restricted property substance which oppose the flow. It is independent of length and area of the conductor. मतलब ये लेंथ और एरिया ऑफ कंडक्टर डिपेंड नहीं करता. एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे करते हो समझा रहा हूँ. देखो we have studied that R is equal to rho L by A. Now if L is equal to 1 meter and A is equal to 1 meter square, so rho is equal to R is equal to rho into 1 by 1 meter square, here 1 meter square, and this will cancel and you get R is equal to rho. So what do you see? That if we have a conductor of length 1 meter and an area of 1 meter square, then the resistance of that conductor is equal to resistivity. Because यहाँ से आप लिख सकते हैं चाहे तो रो RA by L. Now अगर मैं यहीं से लिखता हूँ तो इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ. Let me show in different way. सर वो रो कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है ना जो आंसर में आएगा सॉल्व करने के बाद. हाँ अभी बताऊंगा उसके बारे में और भी चीजें. जस्ट टू अंडरस्टैंड. सो रेजिस्टेंस मैं कह रहा हूँ एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 मीटर है, रो इक्वल टू आर आ गया. सो दिस इज द थिंग someone send in chat, रो per meter. You see, let me explain what does mean. This the definition if you want me from me side. So I said that it is the, now this is the more practical definition which you have to write in board exam. It is the resistance of material or substance is better material. It is resistance of the material of 1 unit area of cross section and having length 1 meter and having length 1 unit. So basically the resistance of material of 1 unit area of cross section and having unit length or having unit length means so it is the resistivity of the material of unit 1 unit area of the cross section having unit length. means अगर कोई वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट है, तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं.
It is the resistance of material of 1 unit area of cross section and having unit length. You can write here also. Sir, please re-explain once. देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर कोई वायर है ना जिसका लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया भी क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट, 1 यूनिट से मतलब एरिया 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो जो भी उसका रेजिस्टेंस होगा उसी रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं. रेजिस्टिविटी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट एरिया. सर अगर वैल्यूज डिफरेंट हुए तो लाइक 1 यूनिट की जगह दूसरा कोई वैल्यू. हाँ नहीं, अगर मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, मतलब 1 यूनिट होना चाहिए. ओके. अब यह रेजिस्टिविटी को यूनिट्स होता है. अब यहाँ पूछा जाए कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ना थोड़ा सा ध्यान रखिए. It is since denoted rho. Now you know resistance unit ohm होती है. अभी I will take your questions. Ohm. Area is 1 meter square and length भी 1 meter है. So we get rho is equal to ohm meter. मतलब कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है ओम मीटर. ओके. Yes sir. हाँ Chris, you want to ask something? Excuse me, sir. Yes. Excuse me, sir. Yes. Sir, Go on. can you please repeat once again as I was disconnected for a few minutes? Okay. Listen. देखिए. Resistivity is the property of substance which oppose the flow of current through wire, and it is independent of the length and area of the cross section. It is the length of. Give me a minute, students. Give me a minute. You say, student. Hello. So resistivity is the property of substance which oppose the flow of current through wire. It is independent of length and area of the conductor. मतलब resistivity एक substance की property होती है जिससे वो current को oppose करता है. Same thing है, but ये length और area पर depend नहीं करता. तो resistivity की definition हमने पढ़ा R equal to rho L by. तो अगर मैंने एक unit length का area वायर ले लिया, एक unit area का वायर ले लिया, 1 मीटर एरिया का, 1 मीटर स्क्वायर का, जो भी मटेरियल है, चाहे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसका 1 मीटर एरिया हमने लिया और लेंथ भी 1 मीटर लिया. उसका जो भी रेजिस्टेंस होता है उसी को हम रेजिस्टिविटी करते हैं. So rho is equal to RA by L, and this can be written as 1 meter square by 1 meter. Meter will cancel. You get rho equal to R. So resistivity is the resistance of a conductor having 1 unit length and 1 unit area of cross section. कोई भी मटेरियल का अगर यूनिट लेंथ हम ले लेते हैं एरिया और यूनिट क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, जो भी उसका रेजिस्टेंस होता है उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. You are getting my points? Yes, sir. एंड यूनिट क्या होता है? देखो यूनिट होता है ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाती है ओम मीटर. सो आई एम राइटिंग दैट आल्सो हियर. यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं. यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. सिंबल इज ओम मीटर. So resistance is ohm meter. Yes. You want to say something? Let's see in the chat box. Chat box. Okay. Chat box पे question था गौरव. Yes, sir. So Gaurav is asking a question that this property will affect resistance, due to which current will be affected. Then current is directly proportional to voltage. Then it also affects electric potential. You see, when we talk about direct relation between resistivity and voltage, so there is no formula which relate directly with resistivity. Resistivity से voltage का direct कोई relation नहीं होता है. बट ऑफकोर्स अगर रेजिस्टिविटी मटेरियल की ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा. अनलेस यू आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट हाउ टू रिलेट अ वोल्टेज, यू डोंट ट्राई टू डू दैट. हम लोग उसको नहीं करते. जब क्वेश्चन ऐसा हो या सिचुएशन ऐसा हो जहां हम लोग देखना है कि हाँ इस मटेरियल का अगर वायर यूज करते हैं और ये पोटेंशियल है तो कितना करंट हो सकता है,
या ऐसा वायर यूज करेंगे तो कितना पोटेंशियल हो सकता है. सो इन दैट केस यू हैव टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स. अदरवाइज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन वोल्टेज. अब ऐसे तो V इक्वल टू IR भी होता है, तो R इज इक्वल टू हम कह सकते हैं V बाई I. तो फार्मूला जरूर है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेट, लेकिन वायर का रेजिस्टेंस उस पे वोल्ट बैटरी पे नहीं डिपेंड करता ना. मान लो मैंने ये मेरे पास तार है, अब मैं मार्केट से वायर खरीद के लाया, अब वायर का रेजिस्टेंस तो बैटरी पे तो डिपेंड नहीं करेगा, वो तो अलग चीज है ना. वायर का रेजिस्टेंस तो अपना खुद का है. इट हैज नथिंग टू डू विद कि कौन सी बैटरी लगा रहे हो, कितना करंट दे रहे हो, इससे नहीं मतलब उसका होता है. अब मार्केट में जाएंगे रेजिस्टेंस खरीदने, सपोज यू गेट TC, I'm going to show you something. रजिस्टर है. सर रजिस्टर लिखिए. हाँ मैंने वही लिखा. नाउ अब ये जैसे आप रजिस्टर देख रहे हैं 3.3 किलो ओम का है. तो अब ये रजिस्टर की मटेरियल है, इसका प्रॉपर्टी किस चीज से बना हुआ है, किसका लेंथ कितना है, कितना एरिया, इस पर डिपेंड करेगा. अब इसमें आप कितना वोल्टेज देते हो, कितना करंट देते हो, इससे इसका रेजिस्टेंस नहीं चेंज जाएगा. तो रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का वोल्टेज और करंट से कोई लेना देना नहीं है. रेजिस्टेंस तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि भाई हम इतना करंट अपने से जाने देंगे, इतना पोजीशन हम ऑफर करेंगे. अब आप उसको कौन सी बैटरी से जोड़ रहे हो, तो उस आधार पे करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू तो फिक्स होती है ना. रेजिस्टेंस तो एक बार बन गया, रेजिस्टेंस का तो बन गया. मेरी बात समझ में आ रही है? आई एम आस्किंग अबाउट द आउटपुट. से जो रेजिस्टेंस के बाद जो आउटपुट निकलेगा कि इतना करंट है, तो वोल्टेज भी चेंज होगा कि नहीं होगा? जब बैटरी से गुजर के, मतलब बैटरी से पास होके, बैटरी से रजिस्टर से पास होके जब आउटपुट आ रहा है, तो वोल्टेज डिफरेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? करंट तो डिफरेंट रहेगा क्योंकि रजिस्टर से पास हुआ, लेकिन वोल्टेज V इक्वल टू IR होता है. अगर रेजिस्टेंस अलग अलग वायर्स का हम लेंगे, अलग अलग रेजिस्टेंस लेंगे, तो वोल्टेज अलग अलग आएगा. अगर मान लो सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज मैं एक प्रोसेस सिचुएशन आपको समझाता हूँ. जैसे देखो, एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं. पहले तुम इसको कंप्लीट कर दो, यहाँ से लाओ. अब देखो मैं आपको एक सिचुएशन, रियलिस्टिक सिचुएशन बना लेता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं. हम लोग काम हो चुका है. सर वो पूछ रहा है कि लाइक अगर कोई पावर हम लोग देते हैं जो बैटरी से निकल के सर रेजिस्टेंस के थ्रू जाता है, तो करंट तो चेंज होगा पर वोल्टेज भी चेंज होगा उसका. फिर नहीं, बैटरी का वोल्टेज नहीं चेंज होगा, उसके डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग सर होगा. भाई हाँ, उस डिवाइस का अलग होगा. मैं वो सब कर रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज सर. हाँ मैं वही दिखाना चाहता, वही पूछ रहे थे. समझ गए? नहीं समझे तो नहीं समझे तो फिर शांत क्यों हो गए? समझाने जा रहे हैं, ठीक है. अब मैं एक सिमुलेशन दिखाने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से हम लोग और बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं. ओहो, एक सेकंड जरा सा, 2 मिनट. हम इसमें देखेंगे ना, बैटरी को कनेक्ट करेंगे सर्किट से, और उसको कनेक्ट करके एक्चुअली देखेंगे कि क्या स्थिति में चेंज हो जाती है. सो यू विल गेट मोर इनसाइडर आइडिया. सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस? देखो अभी क्या मैंने बताया, अभी तुम उस पर आ ही रहा था. रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. इट डजंट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया. रेजिस्टिविटी का लेंथ एरिया से कोई मतलब नहीं है. एक बार रेजिस्टिविटी मान लो कॉपर की अलग हुई, गोल्ड की अलग हुई, सिल्वर की अलग हुई, सबकी अलग अलग होती है. लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि कितना लंबा तार है, कितना एरिया है, उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. अब जैसे गोल्ड की रेजिस्टिविटी फिक्स है, दुनिया में कहीं से भी गोल्ड खरीदा जाएगा, सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी. लेकिन अगर मैं एक वायर बनाता हूँ, एक रजिस्टर बनाता हूँ, अब वो वायर का रेजिस्टेंस लंबा कितना है, एरिया कितना है, इस पर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा. तो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वो चेंज नहीं होती है. और जब भी कोई सा भी गोल्ड लेंगे उस लेंथ का, तो उसके लिए बात लागू होती है. जैसे लाइक रेजिस्टर में टॉलरेंस लेवल होता है, उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी उसका. जैसे कि गोल्ड कलर का एक स्ट्रिप होता है रेजिस्टेंस में, कभी सिल्वर कलर का स्ट्रिप होता है, कभी ब्राउन होता है, 3 कलर. हाँ, वो तो टॉलरेंस, और उसका तो होता है कि वो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, हाउ मच इट्स एक्चुअली, जो कार्बन कोड रेजिस्टर आपको पढ़ाया जाता है. सर वो कलर कोड करके निकालते हैं. नहीं, कलर कोड एटीएल लैब में, आपको पढ़ाया गया है. जी सुधीर सर आपको जरूर पढ़ाए होंगे. सर कलर 4 कलर रहते हैं, वही में करो नौटंकी. लेकिन टॉलरेंस लेवल हम लोग नहीं लेते कलर कोड का फॉर्मूले में. टॉलरेंस लेवल
ठीक है, हम समझ रहे हैं। अभी हम लोग पहले अपने यस सर। थोड़ा सा हम लोग अपने काम पर ध्यान दिया जाए तो बेहतर होगा, जो उनका डाउट उस पर आते हैं। हमने पढ़ा है और आगे और भी पढ़ेंगे, 11th में है। देखिए फिर मैं वो डिपेंड नहीं करता उस पर, एक एक समय में एक क्वेश्चन को समझा जाए। सर आप 2 स्विच लगा दिए हैं सर। ओहो सॉरी, चलो दोनों को ऑन कर देंगे, क्या दिक्कत है। ओह सो रेजिस्टेंस तो मैंने लगाया नहीं। बैटरी अब शॉर्ट मैं अब मैं यहाँ पे हम दो जो है एक मैं रजिस्टर लगाता हूँ, एक रजिस्टर यहाँ लगा लेता हूँ, एक रजिस्टर यहाँ लगा लेता हूँ। सर सेल मत लगाइए, बैटरी लगाइए। सेल ही है, बैटरी ही एक्चुअली। हाँ, इसके वोल्टेज को हम बढ़ा सकते हैं। मजेदार बात है कि ये सर्किट ओपन कैसे है, मैंने इसको तो खोला ही नहीं। सर वो ग्लिच हुआ था। नाइस ओके नाउ इट्स फाइन, अब सही है। अब सुनिए, अब यहाँ पर वोल्ट मीटर ले लेते हैं, वैल्यूज ऑन कर लिया मैं, करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 9 वोल्ट की बैटरी, करंट जा रहा है। अब इसका पोटेंशियल आप निकालेंगे ना, तो आप देखोगे ना कि करंट तो सब में सेम जा रहा होगा। कितना जा रहा होगा? सेम जा रहा है। अभी करंट चेक कर लो, देखो इसको तो नॉन कन्वेंशनल नहीं दिया है इसमें। मैं एक्चुअली क्या करूँ, अच्छा इसमें ना ये जो अमीटर है इसको सर्किट के बीच में लगाना होगा करंट मेजर करने के लिए, तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी हमें करंट देखो, करंट की वैल्यू 0.45 एम्पियर। अब इस पूरे वायर में करंट सेम जा रहा है। ओम्स लॉ से हम जानते हैं रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी चेंज होगा, लेकिन वोल्टेज देखते हैं इसके क्रॉस, बैटरी के क्रॉस, इस रजिस्टर के क्रॉस कितना है 4.5, माइनस इसलिए दिखा रहा है कि उल्टा लगा। नाउ द वोल्टेज कितना है, नाउ इट इज 4.5। नाउ कनेक्ट इट हियर, यहाँ कनेक्ट करते हैं। ये वोल्टेज अगेन 4.5 है, दोनों का सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। अब मैं इसका रेजिस्टेंस में चेंज करने जा रहा हूँ। तो अब मैं इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। सपोज कर लो मैंने 61 या 62 कर दिया। अब मैं एक्चुअली मैं कुछ और चीज चाहता हूँ। आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एक रेजिस्टेंस पहले से लगा हुआ है, तो बेटर है कि उस चीज को मैं सही से दिखाने के लिए रुकिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। अब इसके पास वोल्टेज कुछ और होगा, देखो 7.72 है। करंट भी चेंज हो गया है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ओवरऑल करंट घट गया है, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस उस डिवाइस के क्रॉस चेंज हो जाए। सो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आप रेजिस्टेंस चेंज करेंगे ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस उस डिवाइस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वायर की रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे देखिए करंट और घटेगा। मैं वायर की रेजिस्टिविटी बढ़ा रहा हूँ, रेजिस्टिविटी घटाएंगे तो करंट ज्यादा होगा। सो दैट्स समथिंग। बैटरी का अगर हम वोल्टेज ओम्स लॉ तो आपने पढ़ा ही अच्छे से, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट हायर फ्लो होता है। सो ये चीज मैं डिस्कस किया था पिछले क्लास में भी कि लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा उसके पास। ये मैंने सिमुलेशन आपको पहले दिखाया है ना पिछले क्लास में भी। सर उसमें हम लोग ने लाइट जलाई थी। यस हाँ सर, ठीक है। दिखाया था। तो मैं बस यहाँ पे इसलिए उठाया क्योंकि मुझे दिखाना था कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो रेजिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। चलिए आते हैं टॉपिक पर। सो रेजिस्टिविटी, हाँ रेजिस्टिविटी जो होती है वो वायर की फिक्स होती है, अलग अलग वायर की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। लेंथ ज्यादा होगा तो कभी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। मान लो कि मैंने आपको कहा कि R इक्वल टू रो एल बाई एल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा।
Now if I increase the length ना resistivity will increase, resistance will increase. लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है. तो सपोज को लेंथ डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा. लेंथ 4 टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स हो जाएगा. लेंथ हाफ कर देंगे रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा. एरिया डबल करूंगा रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा. एरिया हाफ करूंगा रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा. इसमें ये रो है. सो रो जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता है. तो इस रेजिस्टिविटी पर कोई लेन देन नहीं होता है. लेंथ बढ़ाओ एरिया बढ़ाओ कुछ भी करो रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी. क्योंकि रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो इस आधार पर आधारित है कि जब हम किसी वायर का किसी मटेरियल का लेंथ ही 1 मीटर का लेंगे एरिया 1 मीटर स्क्वायर का लेंगे तो जो भी उसका रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टिविटी होती है. तो फिक्स किया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का वायर 1 मीटर लेंथ का वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं. तो वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता. रो फिक्स रहता है. लेंथ आप बढ़ा लो एरिया बढ़ा लो कुछ भी कर लो रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगा. लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है. तो आप एक ही वायर रेजिस्टिविटी के मटेरियल का यूज करके अलग अलग रेजिस्टेंस बना सकते हो. लेंथ को चेंज करके एरिया को चेंज करके. So are you getting my points what I'm trying to explain, that what is difference in resistivity and resistance? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So now we are going to read about some more concepts. Let me take a simple question. So time is over. Okay, yes, time is going to over. So we will do in next class. Don't worry. So let me take attendance. Don't go anywhere. Attendance आपने Zoom से लिया होगा. कुछ बच्चों ने तो उनका attendance नहीं आएगा. So let me do that. You don't leave. Just once I take the attendance, then you can leave. Try to always join with EduNext, because in that case what happens that your attendance is taken by itself. So thank you for everyone. We will discuss in the next class. Jain sir. Thank you and Jai sir. Sir. Jane sir. Then